दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 66th वीडियो 17-03-66। आज हम लोग इसके तीसरे चैप्टर का 12वां सूत्र देखेंगे दोस्तों। अष्टावक्र गीता 03:12। Mark the various approaches in which Ashtavakra is opening up the ways for the eligibles. First, Ashtavakra ji pointed out the dark filth sticking inside the literate man. Then he raised questions. Why are you afraid? And now he is defining the literate. अष्टावक्र जी का प्रिंसिपल है remove even the micro slime. You will be excellent. Here he talks about ज्ञानी की उत्कृष्टता. What is it that will take you to your best? There is none to compare with. You have to compete your own self. Here, your best means that you are par cosmic zone. At Golden Gate, you are about to enter the Advait. Now on, if it happens, any or all comparisons vanish. Ashtavakra defines the incomparable wise. Friends, please mark Ashtavakra's teaching is exact. अष्टावक्र जी दोस्तों कर क्या रहे हैं? आपके भीतर छिपी हुई जो मैल है, फिल्थ है, जो आपके अंदर कहीं दीवारों में छिपी हुई है, उसको एक ब्लेड लेके, शार्प एज लेके स्क्रैप कर रहे हैं. ही इज स्कैल्पिंग इट आउट. ये मैल, ये फिल्थ आपका अपना अंधकार है जो आपको दिखता भी नहीं. In deep corners of your life, the germs of sexual desires keep lurking in you. In deep crevices, the poisonous insects of acquiring wealth, possessing wealth, keep moving in you. These creepers crawl inside you deep. These never surface up. They show themselves when you are alone, and you never register them as obstacles in your journey. You do not register them as dark zones in your voyage. In fact, you do not see any untruth in them. You simply go on believing natural है, obvious है,
जिंदगी है तो कुछ तो होगा, कुछ तो रहेगा, और सबसे ज्यादा हम किसी को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। बट फ्रेंड्स, इफ यू स्टॉप एंड थिंक, these are hurdles in your further movement to perfection. Ashtavakra affirms this. You can see it in such simplicity that you will not enter the golden gate, even having seen it, even having reached it. अष्टावक्र गीता 03:12। निह स्पृहम मानसम यस्य नैराश्येपि महात्मनः तस्यात्मज्ञानतृप्तस्य तुलना केन जायते। Ashtavakra ji is saying, with whom can we compare that great souled one, contented with the knowledge of self, who is desireless even in disappointment. Even in disappointment, the ordinary man cannot give up his desires. On the other hand, he often sticks faster to it. Such, however, is not the case with the man of realization. He cannot really have any disappointment because he has no desire. But even when there are causes for disappointment, for he also engages in action and may sometimes fail, he remains unaffected. He does not stick to his desires and suffer. Thus, Ashtavakra ji is describing the incomparable wise. निह स्पृहम, इच्छा रहित, फ्री फ्रॉम डिजायर, मानसम, मन, माइंड, नैराश्ये अपि। यहाँ पर समझने वालों ने दो अर्थ निकाले हैं। एक मोक्ष में भी और दूसरा इवन इन डिसअपॉइंटमेंट। यस्य महात्मना, जिस महात्मा का, ऑफ ग्रेट सोल्ड, तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य, उस आत्मज्ञान से तृप्त हुए की, of him who is satisfied with self knowledge। तुलना केन जायते, बराबरी किसके साथ हो सकती है। तुलना, कंपैरिजन, with whom can जायते कैन बी। अब ज्ञानी की उत्कृष्टता दिखा रहे हैं अष्टावक्र। जिस विद्वान का मन मोक्ष को भी इच्छा से रहित एवं संसार के किसी पदार्थ के लाभ अभाव में हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं और अपने आत्मा के आनंद
में ही जो तृप्त है, उस विद्वान की किसके साथ तुलना की जावे। उसकी किसी के भी साथ तुलना नहीं की जा सकती, वो तो अतुल्य है। नैराश्ये अपि यस्य मानसम निःस्पृहं भवति, तस्य आत्मज्ञान तृप्तस्य महात्मनः केन समम तुलना जायते। मैं ब्रह्मरूप हूँ, इस प्रकार ज्ञान होने पर जिसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, ऐसा जो महात्मा ज्ञानी पुरुष है, उसका मन मोक्ष के विषयों से भी निराश नहीं होता है। मतलब वह मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता है। दोस्तों, बस आपकी ही बात बता रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र जी। ऐसे ज्ञानी की किस से तुलना की जाए। ऐसा ज्ञानी के तुल्य कोई भी नहीं होता। अष्टावक्र जी हैज गिवन 2 सिंपल पॉइंटर्स। पहला, वैराग्य, द डिस्पैशन टूवर्ड्स सब्जेक्ट्स, इवन फॉर द रिवार्ड्स ऑफ योर एक्शंस। फ्रेंड्स, हम लोगों की भाषा में इवन फॉर योर सैलरी, आसक्ति नहीं होनी है। बिगिन विद आसक्ति एंड क्लाइंब अप टू अति आसक्ति। दिस इज द वे टू रीच अ कर्म, कॉन्टिन्यूअल एक्शन इन परमार्थ। और दूसरा पॉइंटर उन्होंने दिया है दोस्तों, ये साक्षी भाव का, द एक्ट ऑफ बीइंग विटनेस। यहाँ पे मौन की बात आई है, दैट ग्रेट साइलेंस एंड द जर्नी फॉरवर्ड, wherein your मौन opens up the golden gates for you। अष्टावक्र जी का मेथड सिंपल है। You understand that you are body, you are king, strong, wealthy and so on। ये आपकी पहचान नहीं है। ये तो आपने अपने ऊपर थोप रखी हैं परिभाषाएं। ये सब आप नहीं हो। आप शुद्ध चेतना हो, आत्मा हो। जब तक आप यह बिलीव करते रहोगे कि तुम देह हो, ये दुख आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि सब देह के विषय हैं। तुमने झूठे ही बॉडी को एडॉप्ट कर रखा है। यू आर दृष्टा, साक्षी। यू आर दैट हु इज द लास्ट सीयर and who is not affected by anything। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की बातें निकल के आती हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं, डू नॉट बिलीव योर सेल्फ इवन टू बी इंटेलिजेंस। दिस इज merely योर इंस्ट्रूमेंट। ये सब जो भी है, इनको आप सिर्फ यूज करते हो। जब कभी आपको दुख मिले
स्वयं से पूछो, ये दुख किसको हो रहा है? यू कैन बी द वाइस। बात आपकी उत्कृष्टता की है। आप स्वयं ही अपने पारखी हो। ब्रह्म द्वार के उस पार जाना है कि नहीं, आप ही अपने द्वारपाल हो। यू आर योर ओन सर्टिफिकेशन। अष्टावक्र जी का कहना है, आत्मा में रम जाओ। ये छोटी सी स्टेटमेंट पूरे ब्रह्मांड का रहस्य अपने में समेट रखती है। दिस इज नॉट एनी ऑर्डर, इट इज an invitation to take the dip into the bhavsagar inside you. आप बस भटक रहे हैं बाहर। क्या कभी आपने रुक के सोचा है that the real happiness is in the आत्मा? बस यही अष्टावक्र जी ने जनक को बताया है। आत्मा इज योर ट्रूथ, योर ट्रू फॉर्म। दोस्तों, हमारे लिए अभी तक भी ये प्रश्न बना ही रहता है, बट हाउ? देयर इज सो मच नॉइस ऑल अराउंड अस, वी आर कंफ्यूज्ड। उलझे हुए हैं हम। How are we to listen? Ashtavakra Gita teaches this. This is not a book. It is a Marg Darshak. Friends, Ashtavakra Gita is such a mirror that shows us our real face. That face which was always there. Only we have hidden it under layers of ignorance. हम तो आज के युग के अग्रणीय हैं, फास्ट फॉरवर्ड टाइप्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत दिमाग है हमारे पास। हम तो सब कुछ सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं जो हमें समझ में नहीं आता। परम ज्ञानी हैं हम, हमने तो जान लिया। अष्टावक्र तो 8 जगह से क्रिकेट था। कारण कुछ भी हो, ऐसा ही था अष्टावक्र। और बस हम सब समझ जाते हैं, अष्टावक्र था that makes our understanding complete. Ashtavakra's psyche is so obvious to us. पूरे जीवन में जहां भी वो जाता होगा, all eyes must have turned on him. For Ashtavakra, it was easy to know that the soul is not crooked as body. बस जान लिया। और ऐसे ही दोस्तों, हम अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपने नॉलेज की एप्लीकेशन से जो जानते हैं, बस अपने लिए ही ब्लॉकेजेस तैयार करते रहते हैं। और दोस्तों, यदि जनक की कहें, तब की कहें,
जनक was with his गुरु और एक बहुत बड़ी गैदरिंग जनकपुरी में जो थी, इट वॉज ट्राइंग हार्ड टू कोप अप विद अष्टावक्र जी। अष्टावक्र बहुत तेज आगे ही आगे चल रहे थे। फ्रॉम नोइंग अबाउट योर डाउट्स, इग्नोरेंस, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योर भ्रम, फ्रॉम catching up with your ignorance, Ashtavakra had already crossed over to pointing out your personal, specific, hidden dark spots. Ashtavakra had asserted कि यह तुम्हारा भय है, which is to be watched. यह कोई दुख नहीं है। दुख बाद में होता है, बाद में होगा। दुख इज अ मियर पोस्टमार्टम। ज्ञानी जनों के लिए बहुत तेज थी अष्टावक्र की रफ्तार। ही वॉज सेइंग इट इज योर डेथ, डेथ ऑफ योर बिलीव्ड एस्पेक्ट्स, डेथ of the fruit of your intelligence that you carried as your personal possession, that formulated you. And all this time you acted big. You felt you were par selfishness. It is not your death. It is the death of your beloved ones. The reference reflected consistently. एक तरफ अपनत्व और एक तरफ अद्वैतवाद। यह समझना कठिन है। अकर्म को समझना होगा। पारमार्थिकता को समझना होगा। जनक was the direct available source for the pilgrims of जनकपुरी। फ्रेंड्स, वो जो गैदरिंग थी जनकपुरी में, इट ट्राइड टू कोप अप एंड वुड सून कैच अप। दोस्तों, जरा अपनी सोचो, आज की सोचो। अष्टावक्र जी asserted then that it is भय। उनको भय तो मां का सामना करने में भी लगता है। She would know all। हमको भय तो गर्लफ्रेंड का भी है। मिलने से पहले या मिल जाने के बाद, हमेशा। हमको भय तो नौकरी चले जाने का भी है, हमेशा। पता ही नहीं हमें कि कब क्या हो जाएगा। Nothing is in control ever. The fear of unknown always grips us. सब कुछ जानने के बाद भी ऐसी दशा है हमारी दोस्तों, जहाँ पे अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र जी ज्ञानी की उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं। द इनकॉम्पेरेबल वाइज की बात कर रहे हैं। वहाँ पे हम अहम ब्रह्मास्मि हुए, यूं उलझे हुए हैं। अष्टावक्र गीता इज ग्रेट सपोर्ट। Okay friends, thank you so much.
ये है ज्ञानी की उत्कृष्टता। आवर एक्सप्लेनेशन ऑन अष्टावक्र गीता चैप्टर 3 सूत्र 12। द इनकम्पेरेबल वाइज। स्वयं के भय को जानो, भय खत्म हो जाएगा। Friends, I am pretty sure you would have liked Open Secrets explanations on these simple but deep sutras of Ashtavakra Gita. If so, please give this video a thumbs up, a like. Please share it with your loved ones. Please subscribe to our channel if you have not. Please help us grow in our viewership. We thank you for the same. सीनियर हो, मैच्योर्ड हो, एडल्ट हो, प्रोफेशनल हो और उस पे भारतवर्ष में पैदा हो गए हो, यहाँ पे जिया है। यह अपॉर्चुनिटी पूरी पृथ्वी पर दोस्तों और किसी के लिए नहीं है। हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारा इतिहास, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान और उसकी कंपाइलेशन, ये हमारे लिए सतत जीवन के मार्ग स्रोत की तरह है। हमें केवल उठा के इन्हें पढ़ना है, समझना है, बस। उत्थान तो ये स्वयं कर ही देते हैं। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। मे गॉड ब्लेस अस ऑल।